again welcome in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we have discussed the structure of heart, human heart. Human heart का structure हमने discuss किया था डिटेल में. Today I am going to discuss some of the very important aspects of human heart. We will discuss them one by one. मैं एक एक करके आपके साथ ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बातें which may be asked in the NEET आज आपके साथ डिस्कस करूंगा. You are now well aware of the various parts of heart. You know, heart have upper chambers as auricle, the right auricle and the left auricle, and the lower two chambers as ventricles, the right ventricle and the left ventricle. The valves, the blood vessels, systemic aorta, pulmonary aorta, and the valves present between the left auricle and the left ventricle, that is the left atrium and the left ventricle, in the form of bicuspid valve, and here it is between the right auricle and the right ventricle as tricuspid valve. Now the one of the aspect is origin. मैंने पहले भी कहा था because जो heart है वो muscles का बना है, muscles are mesodermal in origin and heart is made up of cardiac muscles, so heart should be mesodermal in origin. आप याद रखने के लिए याद रख लेंगे कि वो कार्डिक मसल का बना है और मसल्स होते हैं mesodermal origin में होते हैं, so heart का जो origin है वो mesodermal origin होगा. क्लियर है? Now very important is the position. हार्ट होता कहाँ है? ये कई बार मैं आपको बात बता दूं, यूजुअली अगर पूछा जाता है कि हार्ट कहाँ होता है तो लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं कि ऑन द लेफ्ट साइड. नो, इट इज नॉट राइट. आप बिल्कुल गलत हैं. हार्ट इज प्रेजेंट इन thoracic cavity. सी व्हाट इज द राइट आंसर? यू आर मैन ऑफ बायोलॉजी, सो यू मस्ट नो. ये thoracic cavity में होता है बेटा. दिस रिब केस, ये जो thoracic cavity है इसके अंदर है. ओके, and it is present in the middle of the thoracic cavity between two lungs. In thoracic cavity between two lungs, and the region is called mediastinum. क्या कहते हैं बेटा उस पोर्शन को? मेडियस्टिनम में होता है. क्लियर? और वो जो मेडियस्टिनम में आपको ध्यान होगा, दिस इज ट्रैकिया, द ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज द राइट लंग, दिस वन इज द लेफ्ट लंग. द लेफ्ट लंग have an notch which is called cardiac notch. कार्डियक वर्ड और टर्म मैंने पहले कहा, इट इज रिलेटेड टू heart, so cardiac notch, and this area between the two lungs, this is called mediastinum. तो हार्ट यहां पे होता है और मैंने पहले भी कहा कि it is slightly tilted toward the left side, toward the cardiac notch here, and the apex is toward this side, and apex is pointed one like this. पढ़ा था ना हमने? So I can draw like this, something like this. Clear? तो वो थोड़ा सा क्योंकि लेफ्ट की तरफ को पड़ा होता है और मैंने पहले भी कहा था apex is the thickest part of the heart. और जो हार्ट बीट हमें लेफ्ट साइड में सुनाई देता है उसका रीजन यही है, हमें वो बीट इसलिए ज्यादा सुनाई देती है क्योंकि अपेक्स जो है वो थिकेस्ट पार्ट है, वो थोड़ा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है. अदरवाइज हार्ट इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज इन द मिडल बिटवीन द टू लंग्स इन द मेडियस्टिनम एंड अ पार्ट इज टुवर्ड द कार्डियक नोच. ठीक है? एंड इट विल रेस्ट ओवर, मैं आपको बता दूं, जो हार्ट है इट विल रेस्ट ओवर डायफ्राम. द सेपरेशन
the separating membrane or the separation between the thoracic cavity and the abdominal cavity, वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है between 5th and 6th rib, particularly कौन सा portion? Apex part. The apex of the heart, this portion, the apex of the heart, it will rest over diaphragm between 5th and 6th rib. Clear? So position की अगर मैं बात करता हूं तो thoracic cavity में होता है. It is present between the two lungs, right and left, in the mediastinum region, and slightly toward the left. It is tilted toward the left. And the apex, which is the thickest part of the heart, it rests over the diaphragm between the 5th to 6th rib. Clear? और जो बेस होगा वो अपर रीजन की तरफ होगा. क्लियर है? पोजिशन इज नाउ क्लियर. नाउ द वन मोर एस्पेक्ट इज साइज. साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने पोजिशन किया, थोरैसिक कैविटी मेडिएस्टिनम में होता है. साइज की अगर मैं बात करूं, साइज अगर मैं जनरली बात करता हूं तो इट इज ऑफ द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट. क्लेंच्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के बराबर, एक बंद मुट्ठी के बराबर, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है. अदरवाइज इन मेल, ह्यूमन मेल, जनरली इट हैव द weight of 300 gram, and in female it has the weight of 250 gram. इस 300 ग्राम में और 250 ग्राम जो डायमेंशन हार्ट की होती हैं, दे आर ऑलमोस्ट लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस. द लेंथ इज 12, okay, and 8 and 6, okay, it is 12, 8 and 6. Clear? तो जो वेट है वो 300 ग्राम और 250 ग्राम का है, और जो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस है वो 12, 8 and 6 what centimeter. So this is all the size of the heart in case of human. Clear? One more aspect I want to discuss today, this is very important, and it is the wall, the heart wall, the wall of the heart. वॉल ऑफ हार्ट को समझने के लिए मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा दैट हार्ट इज प्रेजेंट इन अ फाइब्रोसीरस कवरिंग और सैक विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. हार्ट जो है वो एक फाइब्रोसीरस सैक होती है जिसे आप पेरिकार्डियम कहते हैं. क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. तो हार्ट इज प्रेजेंट इन अ फाइब्रोसीरस sac which is called pericardium. Pericardium have two parts. One is fibrous, one is serous. Fibrous part is the outermost. मैं आपको बताऊं यहां पे जो मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया है ये फाइब्रस पार्ट है बेटा. फाइब्रस पेरिकार्डियम इसे कहते हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू. ध्यान से सुनिएगा, ये टफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. कौन सा? फाइब्रस पेरिकार्डियम. मैं वॉल की तरफ, हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट को ही एक्सप्लेन करने की तरफ जा रहा हूं, पर वो एक सैक में पड़ा है. पूरे का पूरा हार्ट एक सैक में पड़ा हुआ, कवर है वो, उसमें से ब्लड वेसल बाहर निकल रहे हैं उस सैक से, और उस सैक को पेरिकार्डियम कहा. और पेरिकार्डियम के दो भाग हैं, एक फाइब्रस है, एक सीरस है. फाइब्रस जो है दैट इज मेड अप ऑफ द टफ कनेक्टिव टिश्यू.
ये जो टफ कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये क्या प्रॉपर्टी देती है? इट प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सपेंशन। ये एक्सेसिव एक्सपेंशन नहीं होने देती है हार्ट का, और साथ में इट प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ओके, इसका वर्क है, इसका फंक्शन है। द सेकेंड पार्ट विच इज द सीरस पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, एक आउटर एक इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज अटैच्ड टू द फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, एंड इट इज कॉल्ड द पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम। मैंने यहां पे एसपी लिखा है, एसपी स्टैंड फॉर सीरस पेरिकार्डियम, बेटा याद रखें, सीरस पेरिकार्डियम। तो जो बाहर की तरफ को फाइब्रस पेरिकार्डियम की तरफ को है वो पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम होगा, और जो अंदर है, जो हार्ट की तरफ को है, हार्ट की तरफ को है, मैंने जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ये मेम्ब्रेन, ये विसरल सीरस पेरिकार्डियम इसे कहते हैं। विसरल सीरस पेरिकार्डियम, it is attached to the muscular wall of heart, which is called myocardium. इसे मायोकार्डियम कहा जाता है, which is the second layer of the heart wall. And this visceral serous peritoneum, which is attached to the muscular myocardium, this will form the visceral serous pericardium. Visceral serous pericardium, it will form the outermost layer of heart wall or wall of heart, which is called the epicardium. Epicardium. तो पेरिकार्डियम का जो सीरस पेरिकार्डियम पार्ट है, उसका विसरल जो सीरस पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है वो एपिकार्डियम बना देता है। EPICARDIUM, एपिकार्डियम। ओके, बिटवीन द, सुनिएगा ध्यान से, ये तो इसका इनरमोस्ट हार्ट वाल हो गया, प्रोटेक्शन करेगा, पर पेराइटल का क्या फंक्शन है? पेराइटल पेरिकार्डियम एंड द पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम एंड द विसरल सीरस पेरिकार्डियम, ये ज्वाइंटेड नहीं होती हैं, इनके बीच में कैविटी होती है जिसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। और जो सीरस पेरिटोनियम है वो इसमें एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। सो द पेरिकार्डियल कैविटी है पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत बड़ा फंक्शन है इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड का। कहां पे प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल कैविटी में। पेरिकार्डियल कैविटी कहां है? पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम और विसरल सीरस पेरिकार्डियम जो एपिकार्डियम बनाती है, उन दोनों के बीच में। दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड इट moisten the हार्ट, ये हार्ट को गीला रखता है, मॉइस्चर रखता है, एंड अलाउ फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। बेटा याद रखें इस बात को, ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। गेटिंग? नाउ द visceral serous pericardium will form the epicardium, the outer wall layer of heart. मैं लिख देता हूं, wall of heart have 3 layers. Outer layer as epicardium, okay,
और वो किस चीज की बनी है एपिकार्डियम? बेसिकली थिन फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं, थिन फ्लैट एपिथेलियल सेल की बनी है। फिर इसमें बेटा एक मिडल लेयर आता है जिसे क्या कहा गया? मायोकार्डियम। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। दिस इज द लेयर विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक व्हाट टिश्यू प्लस कनेक्टिव टिश्यू और बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। एंड द इनरमोस्ट लेयर, जो इनर हार्ट वॉल है, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम। Endocardium is formed by the epithelial covering of myocardium and the blood vessels. Okay? So wall of heart have three layers. Epicardium, which is formed by the visceral serous pericardium. पेरिकार्डियम एक सैक है जिसके दो पार्ट है। पहला फाइब्रस, जो टफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, उसे फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, आउटरमोस्ट है। उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम जिसके दो भाग है, पेराइटल आउटर है और विसरल जो सीरस पेरिटोनियम है वो इनर है। विसरल सीरस पेरिटोनियम ही एपिकार्डियम बनाता है, जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ हार्ट माना जाएगा उसे। और उसके बाद मायोकार्डियम जो कार्डियक मसल्स मीन कार्डियक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल का बना होता है। और endocardium which is made up of the epithelial covering of or basically I can say squamous epithelium. याद रखें आप इस बात को, what is squamous epithelium? तो squamous epithelium है ना of the myocardium जो मसल्स हैं और blood vessels. So this is what the origin of the heart. It is mesodermal position. It is in the middle, in the thoracic cavity, in the mediastinum region between the two lungs. Apex of heart lie or it rests on the diaphragm between fifth and sixth rib. Size, it is just as a clenched fist, 12 centimeter by 8 centimeter by 6 centimeter. Length, breadth and thickness. Weight, in case of male, it is near about, वेरी करता है, सब में 300 ग्राम नहीं होगा, 280 भी हो सकता है, 280 to 300 ग्राम होगा। एंड इन फीमेल 250 grams is the weight. And this is the description of the wall of the heart. Very important concept about the thickness of walls. मैं वॉल को डिस्कस कर रहा था। We have discussed about the wall of heart. डिस्कस किया कि the wall of heart consists of epicardium, myocardium and the endocardium. The thickness of wall is uneven. It is uneven. There are 4 chambers and the 4 chambers have the different thickness of the wall. You will see here the wall of the right auricle or atrium is thinner. It is thinner than the wall of left atrium or the left auricle. And the wall of the right ventricle is thinner than that of लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल की जो वॉल है वो लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम से पतली होती है, और ऐसे ही जो राइट वेंट्रिकल है उसकी वॉल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से थिनर होती है। और एक और बात आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 चीजें बोली, वॉल ऑफ
left atrium. Then wall of right ventricle is thinner than wall of left ventricle. Reason है इसका. And one more thing, thickest wall is present in लेफ्ट वेंट्रिकल. मैंने कहा था कि जो वॉल है वो मायोकार्डियम इज द मिडल लेयर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स और टिश्यूज. कार्डियक मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनकी. क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हमने पढ़ा था सर्कुलेशन में भी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जो ब्लड को पंप करता है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पंप करता है. इट हैव टू पंप द ब्लड टू द फार्थेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सबसे दूर के हिस्से तक पंप करना होता है. इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना होता है. इसकी बॉल अगर मोटी होगी, जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इट मींस कार्डियक मसल्स आर मोर. When they contract, it will produce more blood pressure, which will make the movement of the blood to the farthest part of the body, and from the farthest part to again to the heart. सबसे दूर के हिस्से तक ब्लड जा पाएगा और दोबारा से हार्ट तक आ पाएगा. इतना प्रेशर क्रिएट करना होता है इसको कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाए, टिश्यू में जाए ब्लड, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, उसके बाद वो राइट एट्रियम तक आए. इतना प्रेशर क्रिएट करना, इसलिए इसकी वॉल सबसे ज्यादा मोटी होती है, थिकेस्ट होती है. द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट हैव द थिनर walls. The reason is that because it have to pump the blood to the nearby organ, these are the lungs. इसलिए उसमें ज्यादा मोटी बॉल नहीं है, जबकि लेफ्ट पार्ट में ज्यादा बॉल्स मोटी हैं. थैंक यू. New more concepts. Till then, subscribe my YouTube channel for more videos. The YouTube channel is Biology at Fingertips with Vijay. You will get more and more information. And press the bell icon surely. Till then, bye to all. Thank you.